Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about our second topic of the chapter number 3, the periodic table and periodicity of properties. So the name of the topic is historical development of the periodic table. If you look at this sketch, it starts from the Dobereiner triad in 1817, then the Newland octave in 1866, and then from the Mendeleev table 1869, and then the modern table in 1923. But before Dobereiner, there was one of the scientists like Al-Razi who classified the elements into the metals and non-metals. So we will also include the discussion about the Al-Razi also. Now if you open your book, the introduction page is given. In the introduction we will discuss like in the year 1800 there are only 34 elements which were known. By the year in 1817 this number of elements which were discovered it increases to almost double, while in the year in 1974 the number of elements become 105, while at present there are 118 elements. Out of 118 elements, the 92 elements they are naturally occurring while the rest are artificially prepared, and the discovery of the element is still continue, यानी elements अभी तक जो है वो और discover हो रहे हैं. ठीक है. Now the next thing is why the periodic table was developed. Actually, initially the number of element it was very limited. This is the answer of this question. So it was easy for the chemists to study these elements, but individually. But as the time passed, the number of the elements increased, so it becomes difficult for the chemists to study each element individually. So it was felt that the elements might be properly arranged so that they could be easily studied. So by doing this, one could easily get more information with little effort. Okay, so these are now the work of the different scientists in the historical background which we are going to discuss now. If you look at this is also a page which is taken from your book. Like the development of the periodic table, it's started in the 1800, and there are different scientists which have different work. We will discuss them one by one. Like first of all, the Al-Razi, he divided the elements into metals and non-metals. Then in the 1817 there was a second scientist, the name of which is Dobereiner. So Dobereiner, he was a German chemist, and he classified chemically the similar elements into a group of 3 on the basis of their atomic masses. Okay students, so इस तरह से है कि जो डॉबेरिनर थे उन्होंने 1817 में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और ग्रुप ऑफ 3 जो है उस बेस पे कि 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में शामिल थे तो उसको ट्रायड का नाम दिया, यानी ग्रुप ऑफ 3 इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रायड. So now the statement of the this triad, what will be actually in this triad? The atomic weight of the middle element, it will be the arithmetic mean of the atomic weight of the other 2 elements. यानी उसने ये कहा कि जो आपके पास 3 एलिमेंट्स उसने लिए हैं, एक ग्रुप उसने 3 एलिमेंट्स का बनाया, लिथियम सोडियम पोटेशियम जैसे यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है, और वो क्या करता गया, वो उसने ये फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड में कह सकती हूँ, उनका एटॉमिक वेट का एवरेज लिया, यानी उनके एटॉमिक वेट को प्लस करके उसको डिवाइड बाई 2 किया, क्योंकि 2 एलिमेंट्स लिए हैं फर्स्ट एंड थर्ड वन. तो उससे जो एवरेज आ रहा था वो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था उसके इक्वल था. ठीक है. तो इसी तरह वो करता गया और काफ़ी 2-3 जो ग्रुप्स है उसने बनाए 3-3 एलिमेंट्स के, और उनके जो एवरेज वो कैलकुलेट करता गया फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, तो उसका जो एवरेज आ रहा था वो मिडिल एलिमेंट के वेट के बराबर होता था. Like if you look at it further, this is a Dobereiner triad. The elements which are selected in the triad is lithium, sodium, potassium for the first time, and the atomic masses of these elements are given. So the group of 3 elements they have similar properties. अब वो ये देखता गया कि ये जो 3 एलिमेंट्स के वो ग्रुप बनाता गया, जिसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के मास प्लस किया, उसका एवरेज निकाला डिवाइड बाय 2 करके, वो सेंट्रल एलिमेंट के मास के बराबर आ गया. तो वो जो 3 एलिमेंट्स थे जिनको वो एक ग्रुप में उसने डाला था, उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सिमिलर थी. अब
जो है यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि द एटॉमिक वेट ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, जैसा कि पिछले में आपको मैं बता चुकी हूँ। नाउ लुक एट दिस डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड इसे हम कहेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको मेंशन किया हुआ है, तो उसने यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स पहले लिए, उसके बाद ये 3 लिए, और उसके लिए यही तरीका किया जो भी आपको मैंने बता दी। जैसे यहाँ पर ये लिथियम 7 एटॉमिक मास है, पोटेशियम का 39 है, जबकि सोडियम का 22.9 या 23 हम उसको कह सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन इन दोनों का जब एवरेज लिया गया, एवरेज मास, तो वो सेंट्रल वाले एलिमेंट यानी सोडियम के मास के बराबर आया। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, द फर्स्ट एलिमेंट इज़ लिथियम इन द ग्रुप ऑफ ट्राइड, द सेकेंड वन इज़ पोटेशियम। इन दोनों का एवरेज लिया गया तो वो सेंट्रल एलिमेंट के वेट के बराबर आया, ठीक है। और फिर इन तीनों एलिमेंट्स को कि जिनको ट्रायड में डाला गया था, यानी ग्रुप ऑफ 3 जिसे कहते हैं, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम आ रही थी। जैसे यहाँ पर अगर देखिए, ये जो 3 एलिमेंट्स का पहला जो ग्रुप डोबेरिनर ने बनाया था, तो उसमें ये था कि वो तीनों एलिमेंट्स को अगर आप देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दीज आर मेटल्स, दीज ऑल 3 एलिमेंट्स दे आर मेटल्स। फिर सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी, ये तीनों जो एलिमेंट थे, इन तीनों एलिमेंट्स के चूँकि लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। आगे इंशाल्लाह आप लोग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप्स एंड पीरियड्स के डिटेल में। So they all have one electron in the outermost shell, and they all can lose one electron. So when they lose one electron, so they show the valency of +1. Like here they have given, they have a valency of 1. Valency of 1 means, valency mean the number of electrons which are lost or gained or which are shared. सो मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग अपनी 8 क्लास में कोर्स में पढ़ भी चुके हो। सो ये जो 3 एलिमेंट है, ये तीनों चूँकि फर्स्ट ग्रुप में हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये तीनों एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 वैलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, जो कि सिमिलर थी इन तीनों एलिमेंट्स के, जिनको एक ही ट्रायड में रखा गया था। नेक्स्ट, ये जो ट्रायड था, इनकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये तीनों एलिमेंट्स व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अल्कली एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट अगर इनको वाटर के साथ ट्रीट किया गया, रिएक्ट किया गया, तो ये अल्कली और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हाइड्रोजन गैस का तो आपको पता होगा, लेकिन व्हाट इज़ अल्कली? अल्कली मीन्स द बेस विच इज़ सॉलेबल इन वाटर, यानी वो बेस जो कि पानी में सॉलेबल हो। लेटर ऑन आप इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है आ रहे हैं, उसमें आप स्टडी करेंगे अल्कली और बेस, एसिड एंड बेस के बारे में। बट व्हाट इज़ बेस में भी ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो। सो बेस इज़ अ स्पीशी विच कंटेन हाइड्रोक्सालाइन। जैसे आप लोग के लेवल पे फ़िलहाल आप लोग यही इस लिहाज से स्टडी करोगे कि द बेस इज़ द हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग स्पीशी इज़ कॉल्ड अ बेस, एंड दैट बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर इट इज़ कॉल्ड अल्कली। सो ये जो 3 एलिमेंट है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और अल्कली बनाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं शो करूँगी। लुक एट दिस, like the first element is lithium of the triad, in the sodium and then potassium. They all when react with water they form alkali and as well as hydrogen gas. ये देखिए आप, हाइड्रोजन गैस को हम H2 फॉर्म में लिखते हैं, और ये आपके पास LiOH, NaOH and KOH, these all bases they are soluble in water, तो इनको हम इस वजह से अल्कली भी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड बेस, ठीक है। तो अल्कली वो वाले बेसिस होंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे जो बेस, उसको हम अल्कली नहीं कह सकते, ठीक है। और बेस क्या है कि जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें भी है और लास्ट वन में भी है। नाउ दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड। ये अगर आप देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाकी 3 एलिमेंट्स लिए गए हैं, जिसमें क्लोरीन का 35.5 है, इसी तरह आयोडीन का 127 मास है, और ब्रोमीन जो है, जो फर्स्ट और लास्ट यानी थर्ड वन एलिमेंट है, उसका जो जब एवरेज लिया गया है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया जाए, तो आपके पास जो मिडल एलिमेंट है ब्रोमीन, उसका एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। और फिर इन तीनों की भी प्रॉपर्टीज़ जो है आप इसमें सिमिलर होंगी। जैसे अगर मैं ये कह सकती हूँ कि ये तीनों जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोग इंशाल्लाह पीरियड्स और ग्रुप में डिटेल में पढ़ेंगे। Now look at this, these 3 are the 3 different triads, like the first one, the second one and the third one, ठीक है। डोबेरिनर ने ये ट्रायड्स बनाए थे, बट
डोबिरिनर ट्रायड, लाफ ट्रायड जो है वो ज़्यादा चल ना सका, ठीक है। और उसकी कुछ ड्रॉबैक्स है। वो ड्रॉबैक्स क्या है? लाइक ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, ठीक। अब वो तमाम एलिमेंट्स को एक ट्रायड में अरेंज ना कर सका। सो व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ पर आप देख लें, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन का जब उसने एक ट्रायड बनाया ग्रुप ऑफ 3, जिसमें ये तीनों एलिमेंट को रखा गया, फिर फ्लोरीन जो है पहले नंबर पे आता है और ब्रोमीन जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, जबकि क्लोरीन सेंटर में आ रहा था। तो इन दोनों का जब एवरेज लिया गया, इनको ऐड किया गया 19 + 80, आप उसको कर भी सकते हो। ये देखिए यहाँ पे गिवन है डिवाइड बाई 2, तो ये 49.5 आ रहा था, जबकि यहाँ पर क्लोरीन का जो मास है मिडल एलिमेंट का वो 35.5 है। सो यहाँ पर ये रॉन्ग साबित हो गया, ठीक है। और आगे जब वो करता गया तो उसके जो आंसर्स थे, यानी मिडल एलिमेंट का जो मास था फर्स्ट और लास्ट के एवरेज से जो आ रहा था वो उसके इक्वल नहीं था, जिसकी वजह से डोबिरिनर लाफ ट्रायड आगे नहीं चल सका। So now the next drawback is it is not valid for the elements with a very low or very high atomic mass। यानी ये जो डोबिरिनर लाफ ट्रायड था, ये जो ये आगे यानी बहुत कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट या बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। Now students, in your book come to this paragraph, he also it failed to classify the all elements in this way। वो इस डोबिरिनर लाफ ट्रायड के बेस पे तमाम एलिमेंट्स को क्लासीफाई ना कर सका। Okay, now then in the 1864 more elements has been discovered, and English chemist J. Newland classified the elements in the order of their increasing atomic masses। He classified the elements into group of 7 and found that every eighth element has the properties similar to the first one of the series। He called these groups octaves। Octave mean 8। So lithium resembles sodium and the fluorine resemble chlorine। Now इसको हम अब समझते हैं। ये देखें, इसने एक ग्रुप बनाया जिसमें 7 एलिमेंट्स शामिल थे। अगर आप इसको काउंट करिए 7 एलिमेंट्स है। यहाँ पे इस नीचे वाले ग्रुप में भी एलिमेंट्स जो है वो तकरीबन 7 है, आपके पास 8 है, लेकिन ग्रुप ऑफ 7 का इसने कहा है, लेकिन यहाँ पर 8 एलिमेंट है आपके पास। लिथियम जो है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आपके पास है सोडियम, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें, ये आपके पास 7 एलिमेंट्स है, जबकि जो लॉ ऑफ एक्टिव है, न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव, जो कि न्यूलैंड ने प्रपोज किया था, उसमें ये स्टेटमेंट उसका ये है कि एवरी एट्थ एलिमेंट शो द प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो लिथियम के बाद जो सोडियम है ये 8th नंबर पे आ रहा है। ग्रुप में उसने एलिमेंट्स जो है वो 7 रखे हैं, लेकिन जो सोडियम है वो 8 नंबर पे आ रहा है। तो लिथियम के बाद सोडियम चूँकि 8 नंबर पे आ रहा है, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इस तरह अगर हम बेरिलियम से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, यानी बेरिलियम के बाद 8 नंबर पे मैग्नीशियम आ रहा है। इस तरह वो जो है अरेंज करता गया एलिमेंट्स को, और हर फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8 नंबर पे एलिमेंट आ रहा था, जैसे इसके बाद ये वाला 8 नंबर पे होगा, कार्बन के बाद सिलिकॉन, इसी तरह फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, तो इस तरह इनके ग्रुप्स बनते गए। तो ये जो ग्रुप्स इनके बनते गए, तो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी। जैसे आपको मैंने डोबिरिनर ट्रायड में भी बताया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे तकरीबन इस ग्रुप में, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी। बट ही कुड नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स इन द सेम मैनर, सो द लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स। यानी यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये आगे ज़्यादा ना चल सका, यानी ये भी नाकाम हो गया। बट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट्स failure, like this law was failed? So the reason is actually that one, that this law was applicable up to the calcium। after calcium this law is not applicable, क्योंकि कैल्शियम के बाद जब उसने इस तरह किया तो जो हर 8वां एलिमेंट था वो अपने पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी 20th एलिमेंट तक उसने ये लॉ जो है वो ठीक रहा, लेकिन आगे फर्दर वो ना चल सका। Look at this, like the property of the every 8th element is similar to that of the first element, similar to the first and the 8 notes of the musical scale। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, जैसे म्यूजिकल
उसमें आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें एवरी एट्थ जो नोट होता है 8 नंबर पे वो फर्स्ट वन की तरह वो रिपीट होता है। ठीक है, आगे आपको एक वीडियो में मैं शो करूँगी इंशाल्लाह इस लेक्चर के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीनों चूँकि एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, लिथियम के बाद सोडियम अभी मैंने चूँकि पीछे आपको बता दिया वो 8 नंबर पे आता है। सोडियम के बाद जो पोटेशियम होगा वो आगे 8 नंबर पे आएगा। तो इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर गिवन इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। जैसे इन 3 एलिमेंट्स की मेटालिक इन नेचर होते हैं, दे हैव हाई रिएक्टिविटी एंड दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तीनों जो है वो मेटल्स हैं। ठीक है, और हाईली रिएक्टिव भी है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 वैलेंसी शो करते हैं। इसी तरह कंडक्टर भी है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन इनका साइज़ लार्ज होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, जैसे कि आप लोग मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हो। इसी तरह फर्दर एलिमेंट्स के भी यही वो है। यानी हमने इस लॉ में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो न्यूलैंड है, ये जॉन न्यूलैंड है आपके पास, जॉन न्यूलैंड ने 7 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और 7th के बाद जो अगला 8th एलिमेंट आ रहा था अगले ग्रुप का, जैसे पीछे यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया है, ये लिथियम के बाद जो सोडियम आ रहा था या बेरिलियम के बाद जो मैग्नीशियम आ रहा था, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी। यानी एवरी 8th एलिमेंट जो था वो प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था एवरी फर्स्ट एलिमेंट की तरह। नाउ द नेक्स्ट इज़ ये लॉ, जैसे कि भी आपको मैंने बताया कि ये आगे दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मासेस हायर देन कैल्शियम। यानी कैल्शियम तक ये लॉ चल सका, लेकिन कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं था। यानी एवरी 8th एलिमेंट जो आ रहा था वो फिर फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर रहा था। Now the second point of drawback is newly discovered elements could not find a place in the Newland table. अब जब नए नए और एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो उसको फिर वो उस टेबल में ना रख सका। क्यों? क्योंकि वो फिर उस तरह से एवरी 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर रहे थे। ओके, सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी आगे कैल्शियम के बाद ना चल सका। Now students come to the next paragraph. In 1869, the two chemists Lothar Meyer in Germany and the Dmitry Mendeleev in Russia at about the same time independently developed a similar arrangement of elements. They found that while arranging the elements in order of their increasing atomic mass, certain physical and chemical properties are repeated at a regular interval. And Lothar Meyer, he plotted the atomic volumes or densities of the elements against their atomic masses, and he found that the similar elements occupied similar position in the graph. अब यहाँ पे इन्होंने बात की हुई कि 1869 में लॉथर मेयर था एक साइंटिस्ट जर्मनी में, और डिमेट्री मेंडलीफ उसका काम है। ठीक है, मेंडलीफ ने तो ये काम किया है कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। तो आगे हम आगे पढ़ेंगे कि मेंडलीफ ने ओल्ड पीरियोडिक टेबल बनाया था, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लॉथर मेयर का काम था, लॉथर मेयर ने क्या किया, लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम का और एटॉमिक मास का एक ग्राफ बनाया। ठीक है, और ग्राफ में वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो थी तो वो एक ही तरह की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही थी। फॉर एग्जांपल अगर टॉप पे जो एलिमेंट्स आ रहे थे पीक्स पे, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द लॉथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ये उसका एक्सपेरिमेंटल वर्क था इस साइंटिस्ट का, न्यूलैंड के बाद इसने काम किया था। Lothar Meyer, German chemist, he plotted a graph between atomic weight and atomic volume, and he found out that the elements with the similar properties occupied the similar position on the graph. इसे 2A ग्रुप एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 1A ग्रुप एलिमेंट्स का भी हो सकता है। यहाँ पर इसको समझने के लिए हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। लुक एट दिस ग्राफ। उसने लॉथर मेयर ने क्या किया था कि एटॉमिक वॉल्यूम को और एटॉमिक मास को के दोनों से एक मिल के एक ग्राफ अरेंज किया। ठीक है, ग्राफ में ये था कि वो एलिमेंट्स जो कि एक ही ग्रुप में आते थे या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे, तो वो ग्राफ में एक ही तरह के पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। इफ़ यू लुक एट दिस, लिथियम टॉप पे है इस पीक के, सोडियम टॉप पे है, पोटेशियम टॉप पे है, रुबीडियम टॉप पे है, और यहाँ ये आपके पास सीजियम है, इसको CS कर ली, यहाँ पर थोड़ा सा L लग रहा है बट दिस इज सीजियम। तो ये जो टॉप पे जो एलिमेंट्स है ये सब एक ही ग्रुप के थे और इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे ये क्लोरीन एक ही तरह की पोजीशन है, तो ब्रोमीन की भी इसकी तरह, आयोडीन की भी और फ्लोरीन की भी सेंटर में आ रही हैं पीक्स के, तो ये एक ही ग्रुप में आते हैं, इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, इसी तरह अगर आप उसको देख लें कैल्शियम या बेरियम या स्ट्रॉन्शियम जो है तकरीबन पीक के बाद आते हैं, तो उनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये लॉथर मेयर ने ये काम किया था, लेकिन ये भी आगे इतना ना चल सका।
Now look at this paragraph. अब मेंडलीव के काम की तरफ आते हैं. Dimitri Mendeleev, he arranged the elements in the form of table. He arranged 65 elements in the periods and group. जो डिमेट्राई मेंडलीव था उसने क्या किया था, उसने एक टेबल अरेंज की जिसमें 65 एलिमेंट्स को उसने ग्रुप और पीरियड्स में रखा. जैसे कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ पिछले ऑनलाइन लेक्चर में कि पीरियड इज़ द हॉरिजेंटल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड पीरियड एंड द वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप. अब इस टेबल में उसने क्या किया था, उसने कुछ वैकेंट स्पेसेस रखी. ठीक है, वैकेंट स्पेसेस इसलिए रखी कि कुछ एलिमेंट अभी जो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो अगर वो डिस्कवर होंगे तो वो उनको उस वैकेंट प्लेसेस में स्पेसेस में रख सकें. ठीक है, इसके अलावा इस टेबल में उसने क्या किया, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सर्टन एलिमेंट्स वेरी एक्यूरेटली दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड. अब कुछ एलिमेंट थे जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसकी उसने प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसने प्रिडिक्शन की कि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, अगर क्योंकि स्पेस का उसे पता था कि इस स्पेस में अगर ये एलिमेंट आएगा तो इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, तो उसने प्रिडिक्शंस दी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या किया, मेंडलीव क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास. अब मेंडलीव जो था उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, पहला जो रफ टाइप का पीरियोडिक टेबल था वो मेंडलीव ने बनाया था, और उसमें क्या था, एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट अरेंज थे. ठीक है, लेकिन जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया तो फिर एलिमेंट्स वेरीड रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर नॉट विद एटॉमिक मास. फिर जो एटॉमिक मास के मुताबिक जो टेबल था वो ना चल सका, फिर उनको एटॉमिक नंबर के बेस पे जो अरेंज किया गया टेबल था वो फिर आगे अभी तक चल रहा है. चूँकि एटॉमिक नंबर के बेस पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये तो आपको पहले से आइडिया होगा स्टूडेंट्स, तो उसके मुताबिक स्ट्रक्चर से ही हम उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी कर सकते हैं. So the properties of the elements dependent on the number and arrangement of electron in each of this of its atom. ठीक है, चूँकि properties of elements है वो उस पर डिपेंड करती है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और वो किस किस्म का बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया है 8th क्लास से. और लुक एट दिस, ये आपके पास मेंडलीव का ओल्ड पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, इस चैप्टर में आपको मैंने ये भी करवाना है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ओल्ड पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडलीव ओल्ड पीरियोडिक लॉ. ठीक है, जो कि एटॉमिक मास के बेस पे है. यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट तो नहीं गिवन, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मेंडलीव ओल्ड पीरियोडिक लॉ जो है उसके बेस पे ये मेंडलीव ओल्ड पीरियोडिक टेबल बना है. तो मेंडलीव ओल्ड पीरियोडिक लॉ क्या है, वो है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है, ये आपके पास बुक में नेक्स्ट पेज पे गिवन है, जो हिस्ट्री के बाद जो पेज आ रहा है. ओके, सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स है अगर उनको ये जो अरेंज किया है मेंडलीव ने, वो एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया है. तो जो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ये इस तरह से हम गुजर रहे हैं, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहे हैं हाइड्रोजन के बाद जैसे लिथियम, फिर सोडियम या पोटेशियम, और आगे जो एलिमेंट है इनकी सब की प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती है. जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट था और फिर कुछ इंटरवल के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट आया ग्रुप 1 में, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करेगा. इस तरह से बेरिलियम है और कुछ इंटरवल इस तरह हम गुजर गए, कुछ और एलिमेंट डिस्कवर हो गए, उसके बाद एक एलिमेंट आया मैग्नीशियम. तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो कि एक ही कॉलम ग्रुप में आ रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी. हम इस तरह से कह सकते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट हो रही है, यानी एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं. ओके, अब इसके बारे में यहाँ पे एक थोड़ी सी डिटेल गिवन है कि जो 8 वर्टिकल कॉलम्स है ये मेंडलीव का ओल्ड पीरियोडिक टेबल है. चूँकि आप लोगों से लास्ट टाइम मैंने स्केच ड्रॉ करवाया था, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, न्यू पीरियोडिक टेबल था. ठीक है, उसमें भी मेंडलीव का रोल भी है, लेकिन मॉजली का भी ज़्यादातर उसमें काम है. ठीक है, तो ये यहाँ पर जो 8 वर्टिकल कॉलम आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक उसने एक अरेंज किया, 65 एलिमेंट्स थे उसमें. तो इसको उसने नाम दिया ग्रुप्स का, वर्टिकल कॉलम्स को. 12 उसमें हॉरिजेंटल रोज़ है. अगर आप देखें हॉरिजेंटल रो 12 इसलिए कह रहे हैं कि एक में रो में फिर फर्दर 3 रोज़ है, इस तरह से ये 2 है, ये 2 है, और फिर इस तरह से. तो 12 रोज़ में उसने अरेंज किया. ठीक है, इसको, और 8 ग्रुप्स में उसको अरेंज किया गया इस पीरियडिक टेबल को. फिर इसने कुछ यहाँ पर मेंशन है कि गैप्स वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. तो नीचे कुछ उसने ये देख लें आप लोग, यहाँ पर स्पेस गिवन है एम्प्टी, यहाँ पे कोई स्पेस गिवन है, यहाँ पे कुछ स्पेस गिवन है, यहाँ पे कुछ स्पेसेस गिवन है. ये जो वैकेंट स्पेसेस है या एम्प्टी स्पेसेस है, यहाँ पर जो और एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा. ठीक है, तो ये तो एक एडवांटेज भी हो गया इस पीरियोडिक टेबल का. आगे हम लेटर ऑन इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे.
फिर प्रॉपर्टीज प्रिडिक्टेड फॉर दीज एलिमेंट्स, ये 3 नहीं है, दीज एलिमेंट्स है, एंड देन नेम्ड। अब ये यहाँ पे जो एलिमेंट है वो अभी डिस्कवर तो नहीं है, उसके लिए स्पेस छोड़ी है वैकेंट, लेकिन वो अगर डिस्कवर होगा तो ज़ाहिर है जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं उन्हीं की तरह प्रॉपर्टीज़ उसकी होंगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी इस एलिमेंट की जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, उसकी मेंडलीफ ने प्रिडिक्शंस कर दी कि इस इधर जो एलिमेंट आएगा जो डिस्कवर होगा और इधर उसको फिर रखा जाएगा तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। फिर इसके बाद व्हेन डिस्कवर दिस न्यू एलिमेंट्स वर नेम सोडियम, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए थे तो इनको भी नाम दे दिया गया था। ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स वर वेरी क्लोज टू दोज प्रेडिक्टेड बाय द मेंडलीव। अब वो एलिमेंट के जिनके बारे में मेंडलीव ने प्रिडिक्शंस दी थी और जब वो डिस्कवर हो गए थे, ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ का पता चला तो वो उन प्रॉपर्टीज़ के साथ बहुत रिजेम्बलेंस थी। ठीक है, ये तकरीबन सिमिलर थी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्शंस दी थी। मेंडलीव ने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ कहा था कुछ एलिमेंट्स के बारे में कि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक, फिर वो एलिमेंट डिस्कवर हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चला तो वो प्रॉपर्टीज़ जो उनका आपको पता चला तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है जो कि डिस्कवरी के बाद पता चला तो वो मेंडलीव ने जो प्रिडिक्ट की थी प्रॉपर्टीज़ वो उन प्रॉपर्टीज़ की तरह सेम थी तकरीबन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके ओल्ड पीरियोडिक टेबल और के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पे अगर आप देख लें इस पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स मीन एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स मीन डिसएडवांटेजेस। जैसे कि आप लोगों को रिटन वर्क में मैंने बहुत इजी करके करवाया भी है, आप लोग उससे आप लर्निंग करोगे। ठीक है, सो यहाँ लिखा हुआ है कि द टेबल हेल्प्ड इन द करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस फॉर मेनी एलिमेंट्स। ठीक है, अब इस तरह से था मैंने आपको रिटन में जो करवाया है कि पहले जो ये कैल्शियम था इसको पोटेशियम से पहले रखा गया था। आल दो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 40 है जबकि पोटेशियम का 39 है। कुछ इसमें आइसोटोप्स भी थे। ठीक, तो ये यानी ये टेबल जब बना तो इसका एडवांटेज एक ये है कि कुछ एलिमेंट को इस तरह से रखा गया था कि जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था तो उसको पहले रख दिया गया था और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रखा गया था। ठीक, तो इस टेबल के बनाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जिनका एटॉमिक मास कम था उसको पहले कर दिया गया और जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको बाद में कर दिया गया। जैसे यहाँ पर मैं ये एग्जांपल दूँ कि पोटेशियम 39 है तो उसको कैल्शियम के बाद रखा गया था पहले, लेकिन फिर जब मेंडलीव ने देखा तो उसका पोटेशियम का चूँकि 39 था तो उसको पहले रखा गया और कैल्शियम को बाद में रखा गया। यानी ये अब आफ्टर करेक्शन ये टेबल है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट है इट प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ द टेबल। यानी जैसे भी मैंने आपको बता दिया कि इसने उन एलिमेंट्स का भी बताया जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। इधर वैकेंट स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है इस मेंडलीव ओल्ड पीरियोडिक टेबल का। फिर डीमेरिट्स क्या है, द एटॉमिक वेट ऑफ द टू पेयर ऑफ एलिमेंट्स वर रिवर्स्ड। ठीक है, यानी अब आपको मैंने बार बार यही एग्जांपल बताया क्योंकि ये पिछली बुक्स में गिवन भी है, ओल्ड बुक्स में भी, कि जब उसको पता चला कि पोटेशियम का मास कम है और कैल्शियम का ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर जैसे भी ये करेक्शन के बाद है तो इनको रिवर्स किया गया, पोटेशियम को पहले रखा गया, कैल्शियम को बाद में रखा गया। आल दो पिछले में यही जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था उसमें कैल्शियम पहले और पोटेशियम को बाद में रखा गया था। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया कि एटॉमिक वेट्स को रिवर्स करके करेक्ट किया गया। फिर अल्कली मेटल्स एंड कॉइनेज मेटल्स दे वर प्लेस्ड इन द रिवर्स्ड। यहाँ पर अगर आप देखिए डीमेरिट में इसने लिया है, एडवांटेज में हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ये एडवांटेज है, यहाँ पर हम इसको डिसएडवांटेज ये कहेंगे क्योंकि इसको उल्टा रखा गया है। सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये डीमेरिट में इसलिए डाला गया है कि द एटॉमिक वेट ऑफ द टू पेयर ऑफ एलिमेंट्स वर रिवर्स्ड। जैसे कि आपके रिटन वर्क में भी मेंशन है कि इसमें ये जो पीरियोडिक टेबल था इसमें द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट दीज वर इन वाज इनकरेक्ट। यानी कुछ एलिमेंट्स की जो पोजीशन थी वो इनकरेक्ट थी। ठीक है, जैसे आर्गॉन के बारे में है, आपके रिटन वर्क में मेंशन है कि आर्गॉन वाज प्लेस्ड बिफोर द पोटेशियम। आर्गॉन का भी यहाँ मैंने जैसे पोटेशियम और कैल्शियम की बात की, लेकिन आर्गॉन और पोटेशियम की बात की गई है कि आर्गॉन जो था उसका चूँकि उसका एक आइसोटोप है आर्गॉन का जिसका 40 मास है। ठीक है, तो आर्गॉन को क्या किया गया था, पोटेशियम से पहले रखा गया था। आल दो जब 40 एटॉमिक मास है तो उसको तो पहले नहीं रखना चाहिए, 39 के बाद रखना चाहिए, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर इन्होंने डिमेरिट्स में इसलिए लिया है क्योंकि
जो कम एटॉमिक मास है उसको पहले रखना चाहिए और जो ज़्यादा एटॉमिक मास है उसको बाद में रखना चाहिए। तो ये इसका एक हम इसको डीमेरिट में काउंट करेंगे, ठीक है। यानी मेरिट में हम क्या क्या काउंट कर रहे हैं, हम मेरिट में ये काउंट कर रहे हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इससे हमें आसानी हो जाती है एलिमेंट को स्टडी करने में। या फिर नेक्स्ट इसने जो प्रिडिक्शन की है प्रॉपर्टीज़ की, और जो डिस्कवर अभी नहीं हुए थे और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी, जब डिस्कवर होने के बाद पता चला, तो ये इसकी एडवांटेजेस में मेरिट्स में आ जाता है। इसके अलावा ये पता चलता है कि जो है एटॉमिक वेट की करेक्शन हो गई, तो इसकी वजह से, यानी हम इसको मेरिट में भी कह सकते हैं। जबकि अगर डीमेरिट में कहें तो हम ये कहेंगे कि एलिमेंट्स को जो है कुछ को बाय मिस्टेक रॉन्ग प्लेस पे रखा गया था, ठीक है। यानी ज़्यादा मास वाले को पहले और कम मास वाले को बाद में रखा गया था। करेक्शन की गई है तो वो उसका एडवांटेज हो गया, लेकिन करेक्शन नहीं की गई थी और उससे पहले, तो ये इसका, और जब रॉन्ग प्लेस में मौजूद थे तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर यहाँ पर एक बात हुई है कि अल्कली मेटल डीमेरिट में एंड द कॉइनेज मेटल्स वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अल्कली मेटल्स, जैसे कि भी आपको मैंने कहा है कि अल्कली के बारे में कहा है कि अल्कली वो बेस है कि जो पानी में सॉल्युबल है। अब अल्कली मेटल्स कौन से हैं, ये ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब आगे इंशाल्लाह ग्रुप में ये डिस्कस करूँगी कि अल्कली मेटल, अल्कली इन अरेबिक मीन बेस, ठीक है। ये फिर आगे इंशाल्लाह बताऊँगी आप लोगों को। ये एलिमेंट ज़्यादातर पानी में डिज़ोल्व करें तो बेस बनाते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो अल्कली मेटल्स है, ठीक। और कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं, कॉइनेज मेटल्स वो होते हैं कि जो कॉइन्स बनाते हैं, जैसे कॉपर कॉइन्स आप लोगों ने देखा होंगे ना, ब्रास जो एक अलॉय है कॉपर का, उससे, या ब्रॉन्ज़ वगैरह से, इन चीज़ें, इन जो इसके डिफरेंट अलॉय है कॉपर के, उससे कॉइन्स बनते हैं। तो ये कॉपर या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड जो है, ये सारे कॉइनेज मेटल्स है, ठीक है। कॉइन्स इससे बनते हैं। तो जो कॉइनेज, ये अक्सर आपसे वाइवा में पूछा भी जाता है कि कॉइनेज मेटल्स कौन से हैं, तो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ठीक है, जिनसे कॉइन्स बन सके, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है भी। आप पिछले उसमें ऑनलाइन लेक्चर में आपने सुना था कि जो है ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में मौजूद है, जबकि एस और पी में जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ इन कॉइनेज मेटल से डिफरेंट है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज हो जाती है। फिर अगर आपको याद हो पिछले टेबल में भी, मैं आगे आपको बताऊंगी भी इंशाल्लाह, जो नया टेबल आ रहा है, बल्कि अभी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास इस टेबल को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जबकि ये सारे जो है वो नॉर्मल एलिमेंट है, एस ब्लॉक वाले या यहाँ पे पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है। ये नीचे लेंथेनाइड और इलेक्ट्रोनाइड्स के लिए स्पेसिफिकली नीचे पोजीशन पे रखा गया है। ये लिखा हुआ है, देखिए, लेंथेनाइड सीरीज़ और इलेक्ट्रोनाइड सीरीज़। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन मिल चुकी है, ठीक है। जबकि ओल्ड पीरियोडिक टेबल में उसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाली सेम जगह में बाज़ औक़ात मौजूद है, बाज़ औक़ात जो है वो डिफरेंट जगहों में मौजूद है, जो कि उसकी एक ड्रॉबैक हो जाती है। तो हम वापस आ जाते हैं स्लाइड की तरफ। डीमेरिट में एक हमने ये पढ़ा कि इनकरेक्टली प्लेस्ड थे एलिमेंट्स। इसके अलावा हमने एक ये पढ़ा कि कॉइनेज और अल्कली मेटल्स को एक साथ रखा गया है, हालांकि उसको डिफरेंट जगहों में रखना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। फिर लेंथेनाइड इलेक्ट्रोनाइड्स दे वर नॉट गिवन द प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स और इलेक्ट्रोनाइड्स को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं गिवन, ठीक है। आल दो न्यू पीरियोडिक टेबल में नीचे अगर आप देखें वो दो रोज़ में मौजूद थे। आइसोटोप्स फॉर नॉट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए एक स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज हो जाती है। इसके अलावा एक और भी डिसएडवांटेज है जो कि रिटर्न वर्क में आपको मैंने सेंड की थी लास्ट टाइम, आप लोगों ने उम्मीद है कि किया भी होगा। दिस टेबल डज़ नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। यानी ज़ाहिर है जब इस टेबल को एटॉमिक मास के बेस पे बना दिया गया है, तो इस ये टेबल जो है एटॉमिक मास के बेस पे, चूँकि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते, हम एटॉमिक नंबर के बेस पे ड्रॉ करते हैं, तो ये टेबल हमें कोई आइडिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में नहीं देता। अब मेंडलीव के बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया। उसका नाम है H.J. मॉजली। मॉजली ने क्या किया था, मॉजली ने ये रिजेक्ट कर दिया कि जो एटॉमिक वेट के बेस पे जो एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है, उसमें चूँकि उसकी भी यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हम उसको एटॉमिक वेट के बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से था कि
तो एटॉमिक वेट के बेस पे जो पीरियोडिक टेबल बना था और एलिमेंट उसमें एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज हुए थे, तो वो स्टेटमेंट भी जो है ना चल सका कि जो कि ओल्ड स्टेटमेंट था ओल्ड पीरियोडिक लॉ का, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, वो भी ना चल सका। और वो पीरियोडिक टेबल जो था उसमें जो एलिमेंट रखे गए थे वो भी प्रॉपर जो है एटॉमिक वेट के बेस पे रखे गए थे, जिसके बेस पे हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं चलता। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पीरियोडिक टेबल था ये एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज था, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी डीमेरिट्स भी थी, ठीक है, मेरिट भी थी लेकिन डीमेरिट्स भी थी इसकी, ठीक। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ था उसके बेस पे ये जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है वो बना था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ओल्ड पीरियोडिक लॉ क्या था। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी कि ओल्ड पीरियोडिक लॉ था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो एटॉमिक वेट एटॉमिक मासेस ये तो पिछले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उसमें। लेकिन पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या था, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये था कि एक एलिमेंट था और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद जो अगला एलिमेंट आ रहा था उसी ग्रुप में, तो वो सब सेम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये चूँकि एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज है ये एलिमेंट्स, तो फिर ये इसके बेस पे ना हम उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं ना उसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये एटॉमिक मास के बेस पे जो पीरियोडिक टेबल बना था ये भी ना चल सका, ठीक है, जो कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल कहलाता है, ये भी आगे चल ना सका। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जैसे कि मैंने अभी आप यहाँ पर आपको बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट गिवन भी है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ नीचे अगर आप देख लें नीचे लिखा हुआ है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी इसका मतलब ये है कि जब नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि स्केच आप बना चुके हो, जब वो डिस्कवर हुआ तो एटॉमिक नंबर के बेस पे उसमें एलिमेंट अरेंज थे। और ये भी आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेस पे हम एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और स्ट्रक्चर से ही हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का पता कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें पहला जो ओल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज था। फिर नया पीरियोडिक टेबल जिसमें मोजली ने भी काम किया तो वो एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज है। और यही हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर वाला पीरियोडिक टेबल अभी तक चल रहा है और उसमें एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप देख लें तो ये हमारे पास अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली तमाम एलिमेंट्स अरेंज है। ये अल्कली मेटल्स हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यहाँ पर आपके पास नॉन मेटल्स है, यहाँ पर मेटलॉइड्स है, ठीक है, और नीचे आपके पास लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है। सो स्टूडेंट्स होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कोई अगर प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह फिर आगे फ़िज़िकल क्लासेस में हमारी स्टार्ट होंगी, तो उसमें आपको इंशाल्लाह मैं क्लियर करवा दूँगी। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूँगी। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।